गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश कैनवस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 द एलिंग प्लैनेट ग्रीन मूवमेंट्स रोल, रिटन बाय नैनी पाखीवाला. It's a very powerful and thought-provoking essay that talks about our planet, its health, and our responsibility towards it. If you love learning English through real ideas that connect with today's world, then this lesson is for you. And in this chapter, Palkhiwala discusses how the earth is suffering like a sick patient because of human greed, overuse of natural resources, deforestation, and pollution. He highlights the importance of the Green Movement, which began in 1972, to remind us that we are not the masters of this planet but only the trustees. We must protect it for future generations. So, this essay beautifully explains the survival of the earth that depends on a balance between development and environment. So, the author uses real facts and reports to show how urgent it is to save forest, wildlife, and natural resources. Through this lesson, we understand that earth doesn't belong to us, we belong to earth. So stay till the end. If you find this video helpful and inspiring, then don't forget to like this video, share it with your friends and classmates, and subscribe to the channel for more such English lessons and explanations. Together, let's learn and grow and take one small step to save our planet earth. So we'll read the chapter line by line and we'll understand the deep meaning behind it. So this is an article which was written by Nani Palkhiwala and published in Indian Express on 24th November 1994, almost 21 years, no sorry, 31 years pehle. The issues that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance. One cannot recall any movement in world history which has gripped the imagination of the entire human race was so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago. दुनिया का जो इतिहास है, जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, इसमें शायद ही कोई ऐसा मूवमेंट हुआ होगा जिसने पूरी ह्यूमैनिटी की इमेजिनेशन और थॉट्स को इतना जल्दी और गहराई से इन्फ्लुएंस किया होगा जितना ग्रीन मूवमेंट ने किया. मतलब दुनिया का इकलौता ऐसा मूवमेंट है जिसमें सभी ने कनेक्ट किया होगा, सभी के लिए ये इशू है. यहाँ पर ऑथर बता रहे हैं कि एनवायरनमेंट की रक्षा करने के लिए शुरू हुआ था ग्रीन मूवमेंट, राइट. इस ग्रीन मूवमेंट ने हिस्ट्री को एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही अलग, बहुत ही अनोखा मूवमेंट दिया जिससे दुनिया की सोच ही बदल दी, राइट. एंड दिस मूवमेंट स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स अगो. मतलब ये स्टोरी थोड़ी पहले की लिखी हुई है ना, इसलिए 25 बोल रहे. वैसे हम आज के टाइम से अगर करें तो 31 years पहले. So in 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. Since then, the movement has not looked back. तो ये मूवमेंट शुरू हुआ 1972 में न्यूजीलैंड में, और ये दुनिया की तब पहली नेशन वाइड ग्रीन पार्टी बनी थी. मतलब साल था 1972 जब एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक टर्निंग पॉइंट आया. इस समय लोगों को अर्थ की हेल्थ की चिंता हुई कि अर्थ भी बीमार हो सकती है. हमने उसे बहुत बीमार कर दिया है अर्थ को. हमने क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो गए हैं. तो अब टाइम आ गया है कि अर्थ को हेल्दी किया जाए, राइट. और तभी से ये मूवमेंट कभी रुका नहीं है. तब से ये मूवमेंट बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है. नॉट लुक बैक का मतलब इसने कभी रुकने का या पीछे मुड़ने का नहीं सोचा. इस मूवमेंट में ये मूवमेंट आगे बढ़ता ही गया. वी हैव शिफ्टेड वन होप्स irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world.
अब इंसान ने मशीन जैसी सोच से हटकर दुनिया को एक कंप्लीट और इकोलॉजिकल व्यू से देखना शुरू किया। मतलब पहले लोग नेचर को सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे, उसे बस यूज़ करने का एक मटेरियल समझ रहे थे, लेकिन अब वो अर्थ को समझ रहे हैं, नेचर को समझ रहे हैं एज अ लिविंग बीइंग। मतलब वो उसकी भी हेल्थ की चिंता हमें करनी चाहिए, उसकी भी अपनी एक लाइफ है, मतलब उसको हमें उसकी लाइफ को कम नहीं करना चाहिए बल्कि बढ़ाना चाहिए। इट्स अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन एज रेवोल्यूशनरी एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिकस, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolve around the sun. सो पहले जैसे मैंने आपको बताया कि लोग सिर्फ अर्थ को एज अ रिसोर्स यूज़ कर रहे थे, तो ये सोच में बदलाव लाना बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत ही रेवोल्यूशनरी था। ये इस सोच में बदलाव लाना जितना कोपरनिकस का भी एक आइडियोलॉजी थी। तो यहाँ पर ऑथर जो है ना, इस साइंटिफिक मूवमेंट, इस ग्रीन मूवमेंट को की कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब उस चीज़ से जब कोपर्निकस ने ये प्रूव किया था कि पृथ्वी यानी कि अर्थ सूर्य के चारों ओर, सन के चारों ओर घूमती है, और अर्थ के साथ और भी प्लैनेट्स हैं जो घूमते हैं। बल्कि उससे पहले कोपर्निकस की इस थियोरी से पहले हम ये मानने लगे थे कि अर्थ, मतलब जो अर्थ है वही दुनिया का सेंटर है, सन और मून तो इसके आगे पीछे घूमते हैं, इसको रिवॉल्व, इसकी परिक्रमा करते हैं। तो ये हमारा ऐसा मानना था, लेकिन कोपर्निकस ने बताया कि 16th सेंचुरी में कि अर्थ जो है वो सेंटर नहीं है, बल्कि अर्थ और दूसरे प्लैनेट जो हैं वो सन के रिवॉल्यूशन करते हैं उसका। तो बेसिकली वो इस चीज़ को कह रहे हैं, मतलब ग्रीन मूवमेंट को इतना ही बड़ा मूवमेंट बता रहे हैं जितना बड़ा ये मूवमेंट था ना, कि ये मान लेना, ये ऐसा प्रूव करना कि सन के चारों ओर घूम रहे हैं हम, हमारे आगे चारों ओर नहीं घूम रहा सन। तो ये जितनी बहुत बड़ा सोच में बदलाव आया था, उतना ही बड़ा ये बदलाव आया कि अब हमने अर्थ की हेल्थ के बारे में सोचना शुरू किया है। राइट। हम्म For the first time in human history, there is growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism, an enormous being of which we are parts. It has its own metabolic needs and vital processes which need to be respected and preserved. अब इंडियन हिस्ट्री, सॉरी, ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ कि ग्लोबल वर्ल्ड पर एक कॉन्शियसनेस आई, वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस आई। और वो कॉन्शियसनेस ये थी कि अर्थ भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ ऑथर कहते हैं कि हम सबको ये समझना चाहिए, और हमने ये समझना शुरू भी कर दिया कि अर्थ में भी लाइफ है, उसकी भी अपनी नीड्स हैं। जैसे एक शरीर की होती है, जैसे हम इंसान हैं, हम इंसानों की भी शरीर की ज़रूरत होती है कि हमें खाना चाहिए, प्रॉपर नींद चाहिए, हमें रेस्ट चाहिए, है ना। मतलब अगर हम बीमार होते हैं तो हमें इलाज चाहिए, हमारा ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। अगर हम बीमार हैं या हमें कमज़ोरी है तो हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए। तो इसी तरह से जो अर्थ है वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसकी भी अपनी ज़रूरत है, ये भी बीमार हो सकती है। ये जो अर्थ है ये एक बहुत ही बड़ा लिविंग क्रीचर है, उसके भी कई पार्ट्स हैं, मतलब और हम उसके पार्ट हैं, हम अर्थ के पार्ट है ना, कि अर्थ हमारा पार्ट है। इसकी भी अपनी मेटाबॉलिक नीड्स हैं, वाइटल प्रोसेसेस हैं, जिसका हमें रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। मतलब इन नीड्स का हमें रिस्पेक्ट भी करना चाहिए और थोड़ा सा प्रिजर्व भी करना चाहिए उसको। जैसे शरीर के पार्ट्स मिलकर शरीर को हेल्दी रखते हैं ना, वैसे इंसान, क्योंकि हम अर्थ के पार्ट है, जैसे शरीर हमारा जो बॉडी पार्ट्स है, हमारे शरीर का हिस्सा है, इस तरह से हम भी अर्थ का हिस्सा है, अर्थ के पार्ट है। हमको, हमारा ये काम है, इवन हमारी ये ड्यूटी है कि हम हर अर्थ की हेल्थ का ध्यान रखें, मतलब हम अर्थ को नेचर के साथ बैलेंस बना के रखें। द अर्थ's vital sign reveal a patient in declining health. We have begun to realize our ethical obligations to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generations. ये आगे कहते हैं कि जो अर्थ है इसके जो वाइटल साइंस हैं, इनके जो इनके लाइफ के जो साइंस हैं वो ये दिखाते हैं
मतलब अर्थ के जो वाइटल साइंस है ये हमें बताते हैं, ये रिवील करते हैं जब भी वो बीमार हो जाती है। अर्थ के जो वाइटल सर वो ये बता रहे हैं कि अर्थ जो पेशेंट हो गई है, बीमार हो गई क्योंकि उसकी हेल्थ बहुत डिक्लाइन हो रही है। तो यहाँ ऑथर जो है अर्थ को एक पेशेंट बोल रहे हैं, एक बीमार इंसान, बीमार मरीज़ बोल रहे हैं। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। पॉल्यूशन बहुत बड़ा रीज़न है अर्थ के बीमार होने का। दूसरा रीज़न है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पॉल्यूशन और पॉपुलेशन ये दोनों बहुत बड़े रीज़न है अर्थ के बीमार होने के। तीसरा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है डिफॉरेस्टेशन, हम जो ये पेड़ काटते चले जाते हैं इससे भी अर्थ बीमार हो जाती है। सो हमने वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशंस। तो हमें अब ये समझ आने लगा है कि हमें अर्थ की देखभाल करनी चाहिए, उसकी टेक केयर करनी चाहिए, और ये हमारी नॉबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि हम इसके ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी होता है जो ध्यान रखता है, मतलब ऑनर नहीं है। हम अपने आप को अगर अर्थ का ऑनर समझते हैं तो ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम अर्थ के ऑनर नहीं हैं, हम अर्थ के ट्रस्टी हैं। मतलब हम अर्थ के मालिक नहीं हैं बल्कि हम उसके संरक्षक हैं। मतलब हमें इस अर्थ को अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना होगा। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. अब 1987 में जो ये एक कंसेप्ट आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो काफ़ी पॉपुलराइज्ड हुआ था। और ये जो कंसेप्ट लाए थे कमीशन ऑफ ऑन वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो यानी कि ऐसी प्रोग्रेस की जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने कई बार ये शब्द सुना होगा न्यूज़ में भी। तो ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जहाँ पर हम अपने नेचुरल रिसोर्स को सस्टेन भी करेंगे और सस्टेन रखते हुए डेवलपमेंट करेंगे। मतलब ये एक ऐसा डेवलपमेंट होगा जो हमारी प्रेजेंट की ज़रूरतों को पूरा भी करेगा और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज को बचाएगा। मतलब सस्टेन करेंगे हमें। जैसे कि फ्रेश वाटर है, ठीक है, हमें उसको यूज़ करना है लेकिन हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए फ्रेश वाटर को बचा के रखना है। एयर है, एयर को भी हमें यूज़ करना है लेकिन हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए उस एयर को पोल्यूट नहीं करना है। तो दिस इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। इन In its report, it defined the idea that development that meets the needs of present without compromising the ability of future generations to meet their needs. मतलब यही है कि हाँ, इस तरह का डेवलपमेंट होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमें प्रेजेंट की ज़रूरतों को भी पूरा करना है लेकिन फ्यूचर जनरेशन्स की नीड्स को भी हमें पूरा करना है। और ये जो एबिलिटी है फ्यूचर जनरेशन्स की, अब इसकी नीड्स को लेकर इसमें भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। मतलब ये एक ऐसा विकास है, ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें फ्यूचर की ज़रूरतों को नुकसान पहुंचाए बिना आज की ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। तो इसे ही कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यही प्रिंसिपल है, ठीक है। इन द जू एट लुसाका ज़ाम्बिया देयर इज़ अ केज वेयर द नोटिस रीड्स द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब ज़ाम्बिया के लुसाका में एक चिड़ियाघर है। मतलब ज़ाम्बिया में जो लुसाका चिड़ियाघर है वहाँ एक केज है, एक पिंजरा है। वहाँ पर एक जानवर है और उस पिंजरे पर लिखा है कि ये वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस एनिमल है, मतलब दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है। तो यहाँ पर हमें एक थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होती है कि उस केज में कौन सा जानवर है जो दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है। Inside the cage there is no animal but a mirror where you see yourself. अब मज़े की बात ये है कि जो ज़ाम्बिया में जो लुसाका में जो ज़ू है वहाँ पे जो केज रखा है, केज के बाहर लिखा है कि ये दुनिया का सबसे डेंजरस एनिमल है। अब आप केज के अंदर देखेंगे तो आपको कोई एनिमल नहीं दिखेगा बल्कि आपको क्या दिखेगा, मिरर। मिरर में आप अपना ही रिफ्लेक्शन देखेंगे। तो आप ही दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर है। तो ये थोड़ा सा फनी हो गया। मतलब आप यानी कि इंसान
ही दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है जो धरती को, अर्थ को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन है, कोई कहेगा टाइगर है, कोई कहेगा लाइन है, कोई कहेगा जेगुआर है, कोई कोई कुछ कह देगा। जिसको जिस जानवर से डर लगता है वो उसका नाम ले देगा। लेकिन ये एक सच्चाई है कि ये लोग अर्थ को ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। 1% भी नहीं, 0.001% भी नहीं। ये नहीं पहुंचाते दुनिया को खतरा, अर्थ को खतरा। लेकिन हम लोग पहुंचाते हैं सारा खतरा। जितने भी डिज़ास्टर्स आते हैं, जितना भी मतलब जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, जितनी भी पोल्यूशन है, वो सब किसकी देन है? हम इंसानों की देन है। हम अपने सो कॉल्ड डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए अर्थ को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, राइट? तो हम ही हैं दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर। Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the dangerous animals in the world. अब कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे बहुत मतलब एजेंसीज़ हैं जो अपने काफ़ी एफ़र्ट्स कर रहे हैं और दुनिया को मतलब इस खतरनाक जानवर से बचा रहे हैं। यानी कि इंसान भी, मतलब ये जो सब दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है, इंसान भी अब जो है अवेयर होने लगा है। मतलब लोग समझ रहे हैं कि अर्थ को बचाना खुद को बचाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब खुद को बचाना ही है। अगर हम अर्थ को बचाते हैं तो हम खुद को ही बचाते हैं। अगर सपोज आपके घर के बाहर कोई पेड़ है, अगर आप उसे कटने से बचाते हैं ना, तो आप उसको नहीं बचा रहे, आप खुद को बचा रहे। क्योंकि वो पेड़ आपको ऑक्सीजन देता है, छाँव देता है, फ्रूट देता होगा, फ्लावर्स देता होगा, एनवायरनमेंट क्लीन करता होगा। तो अगर आप उस पेड़ को कटने से बचाते हैं तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप खुद को बचाते हैं। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. अब इंसान ये समझ गया है कि नेचर पर उसको कंट्रोल नहीं करना है, मतलब उसको नेचर पर रूल नहीं करना है, बल्कि उसको मिलजुल कर पार्टनरशिप के साथ उसको नेचर का ध्यान रखना है। यानी हम नेचर के साथ हमें को एग्जिस्ट करना है, उसे कंट्रोल नहीं करना है। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज विद which mankind shares the earth. Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. Biologists reckon about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. राइट, सो साइंटिस्ट ने लगभग 1.4 मिलियन यानी कि 14 लाख स्पीशीज़ की पहचान की है। लेकिन अब भी 3 करोड़ से 10 करोड़ तक, ऑलमोस्ट 3 करोड़ से लेकर 100 मिलियन के 10 करोड़ तक जो स्पीशीज़ हैं अभी भी हम उन्हें जानते नहीं हैं। इनके अभी भी हमारी अर्थ पर जीवन में कितने मतलब अर्थ पर कितने सारे जीव हैं हम पूरी तरह नहीं जानते। सो इग्नोमिनियस डार्कनेस का मतलब है जिस चीज़ को हम नहीं जानते। जैसे हिंदी में हम कहेंगे अज्ञानता का अंधकार। मतलब इस अर्थ पे इतने सारे करोड़ों में स्पीशीज़ हैं, हम तो सिर्फ कुछ ही जानते हैं। इतनी स्पीशीज़ के बारे में तो हम आज भी नहीं जानते हैं। One of the early international commissions which deals inter alia, sorry, yes, with the question of ecology and environment was the Branded Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha. So, uh, environment और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पर चर्चा करने के लिए मतलब एक कमीशन बनाया गया था शुरुआत में। मतलब शुरू में इंटरनेशनल कमीशन बनाया गया था जो कि इकोलॉजी और एनवायरनमेंट पर चर्चा करता था। और ये कमीशन ग्लोबल इनइक्वालिटी और एनवायरनमेंट पर काम करता था। इसके जो सबसे पहले जो इंडियन मेंबर थे उनका नाम था, मतलब इंडियन मेंबर्स जो शुरू में वहाँ पर रहे थे उनमें से एक है मिस्टर L.K. झा। L.K. झा ने एक यहाँ पर सवाल उठाया था। फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, मतलब उसमें इन्होंने यह सवाल उठाया था, आर वी टू लीव आर सक्सेसर और स्कॉचड planet of advancing desert, impoverished landscapes and ailing
इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर मिस्टर एल के जहाँ ने एक सवाल उठाया था, क्या हम अपनी अगली पीढ़ी को जलती हुई धरती देंगे, रेगिस्तान देंगे और बंजर भूमि देंगे, क्योंकि हमारे काम तो ऐसे ही हैं। और ये क्वेश्चन आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये हमें सोचने मजबूर करता है कि हम कैसे दुनिया अपने आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ रहे हैं। हमारे पास सांस लेने लायक हवा नहीं है, हम ठीक से हमारी हमारी जो एयर है जिसको हम ब्रीथ करते हैं वो इतनी पॉल्यूटेड है, लैंड इतना पॉल्यूटेड है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हमारा देश तो दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश हो गया है। तो हम कैसे दुनिया छोड़ रहे हैं, हम अपना कैसा देश छोड़ रहे हैं अपने आने वाले लोगों के लिए। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि जो नैनी पालखी वाला है इस एस्से में बताते हैं कि अर्थ जो है एक जीवित इंसान की तरह है जो बीमार हो रही है। इस बीमारी की वजह है इंसान का लालच, अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट, पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो रहा है, नेचर के एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो ये सब की वजह से अर्थ जो बीमार हो गई है। अब समय है कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बदलें। हम अपने जो हमारा जिस चीज़ को हम ज़्यादा अटेंशन देते हैं उसको हम बदलें और हम नेचर के साथ बैलेंस करके एक रिलेशनशिप बनाएं, ना कि हम उस पर कंट्रोल करने का सोचें। सो यहाँ पर जो मुझे समझ में आया है, मेन जो मैसेज यहाँ पे ऑथर ये दे रहे हैं कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, राइट। चलिए आगे पढ़ते हैं। Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospect, points out that the Earth's principal biological system are four: fisheries, forests, grasslands, and croplands, and they form the foundation of the global economic system. So, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन की एक बुक है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट। वो इस बुक में बताते हैं कि अर्थ के 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम हैं, जैसे कि क्या, फिशरीज, फिशेस का जो सोर्स होता है फिशरीज कहते हैं उसको, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। क्रॉपलैंड होता है जिस पर हम खेती करते हैं। तो ये चारों ही बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो हैं ये हमारी लाइफ का बेस है। क्योंकि हमें लाइफ में क्या चाहिए, हमें हमें सबसे पहले चाहिए फूड, फिर हमें चाहिए बिजनेस जिससे हम पैसे कमाएंगे, और इन्हीं चारों बायोलॉजिकल सिस्टम से हम अपना फूड, अपनी लाइफ, अपना बिजनेस और अपना जो हम इन्हीं से ही चलता है, और जो नेचुरल बैलेंस भी इन्हीं से ही होता है। In addition to supply our food, these four systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum tried synthetics. अगर फूड की बात भी ना करें हम, फूड के अलावा, तो ये जो चारों बायोलॉजिकल सिस्टम जो मैंने बताए, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स, तो इन चारों से ही हमें रॉ मटेरियल मिलता है। हमारी इंडस्ट्रीज़ होती है उनको भी रॉ मटेरियल यहीं से मिलता है। और ये जो 4 बायोलॉजिकल सिस्टम है ये हमें सारे सारे टाइप के रॉ मटेरियल हमें प्रोवाइड करते हैं। बस मिनरल्स और पेट्रोलियम को छोड़ दो तो बाकी सब मिलता है। यानी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन की जो पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है वो इन्हीं बायोलॉजिकल सिस्टम्स पर टिकी हुई है। In large areas of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. So, दुनिया के बहुत से हिस्सों में ह्यूमन ने जो इन नेचुरल सिस्टम को नुकसान पहुंचाया है, और इतना नुकसान पहुंचाया है कि अब वो अनसस्टेनेबल लेवल पर पहुंच गए हैं। इंसान ने अपनी ज़रूरतें पूरी की है अर्थ से, नेचर से, ये सच है। लेकिन उसकी ज़रूरतें कब लालच में बदल गई कि हम इंसान को खुद पता ही नहीं चला, और जब उसकी ज़रूरतें लालच में बदल गई तो इसका रिज़ल्ट ये आ गया कि ये सारे जो भी रिसोर्सेज थे अनसस्टेनेबल हो गए। और रिज़ल्ट ये आया कि प्रकृति ने हमें जवाब देने लग गई, प्रकृति कि अब वो बीमार हो चुकी है। नेचर ने हमें इंडिकेशन दे दिया है कि अब नेचर यानी कि जो अर्थ है वो बीमार हो चुकी है और ख़तरे में है। व्हेन दिस हैपन्स, फिशरीज कोलैप्स। और देखो कैसे ये नेचर ने इंडिकेशन दिया है। फिशरीज कोलैप्स हो गई, जो फिशेस के जो सोर्स थे वो ख़त्म हो गए।
फॉरेस्ट डिसअपियर, जंगल गायब हो गए, मतलब जंगल धीरे धीरे हमने काट दिए सारे, तो धीरे धीरे गायब हो गए, जिससे अर्थ का जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो गया। और भी बहुत सारे चेंजेस हैं। ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड। जो ग्रासलैंड थे, मतलब जो जिन पर घास उगा करती थी, वो अब बैरन लैंड यानी कि बंजर जमीन में बदल गए। और जो क्रॉप लैंड थे जहाँ पर खेती होती थी, दैट डेटीरियोरेट, मतलब उसकी भी जो इनफर्टिलिटी जो थी, जो उसकी उपजाऊ शक्ति थी, वो भी कम हो गई। तो यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि धरती की, अर्थ की प्रोडक्टिव कैपेसिटी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, और ये उसकी बीमारी के सिम्टम्स हैं। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, ओवर फिशिंग इज़ कॉमन एवरी डे। अब देखिए, जो जो दुनिया है वो प्रोटीन कॉन्शियस है, क्योंकि इंसान को जीने के लिए, हेल्दी रहने के लिए उसको प्रोटीन की ज़रूरत है। तो प्रोटीन कॉन्शियस है ये देश, प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड है ये। तो यहाँ पर ओवर फिशरिंग जो है वो एक आम बात हो गई है। ओवर फिशरिंग होती है जिससे कि फिशरीज ख़त्म हो गई है, मतलब इंसान ने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा शिकार किया है, जिससे अब जो फिशेस जब सी में ख़त्म हो गई है, तो जो सी लाइफ का जो बैलेंस था वो भी इम्बैलेंस हो गया है। और इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। जब पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई तो उसको रहने के लिए भी बहुत जगह चाहिए, खाने के लिए भी बहुत सारा खाना चाहिए। तो वो सब होगा कहाँ? खाने के लिए बहुत सारा खाना चाहिए, तो लैंड, जो जंगल है उनको काट के ग्रास लैंड में कन्वर्ट किया जाएगा। अब इंसान को खाने के साथ साथ रहने की भी ज़रूरत है, तो ग्रास लैंड्स को, जंगल को काट कर प्लेन जगह बनाई जाएगी जहाँ पर घर बनाए जा सके। तो इस तरह से हमने अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा नेचर को यूज़ किया है, और इससे ये इम्बैलेंस हो गया है। In poor countries, local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking. अब गरीब देशों में जहाँ पर एलपीजी गैस वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं होती, तो वहाँ पर खाना बनाने के लिए वुड का यूज़ किया जाता है, लकड़ी काट के फायर वुड यूज़ की जाती है। तो उसके लिए क्या करते हैं लोग, जंगल से लकड़ी काट के ले जाते हैं। तो मतलब गरीब देशों में तो जंगल जो है वो पूरी तरह बर्बाद हो रहे हैं। तो यहाँ ऑथर जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ है, उनकी जो गरीबी है और उनकी जो एनवायरनमेंट रिलेटेड जो इश्यूज हैं, उसको यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव दैट what goes under the pot now costs more than what goes inside it. अब यहाँ ऑथर कहता है कि कुछ जगहों पर तो सिचुएशन इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई है कि जो लकड़ी बर्तन के नीचे जलती थी, अब उसमें पकने वाले खाने से भी ज़्यादा महंगी हो गई है। मतलब जो फायर वुड है वो फूड से भी ज़्यादा महंगी हो गई है। मतलब ये एक सरकाज़म है यहाँ पर, कि गरीबी भी है, और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी भी कमी हो गई है। तो खाने से ज़्यादा तो नेचुरल रिसोर्सेज महंगे हैं। Since the tropical forest is, in the words of Dr. Mayers, the powerful house of evolution, several species of life face extinct as a result of its destruction. अब डॉक्टर मेयर्स जो है वो, उनके अकॉर्डिंग जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन है। अब इनके नष्ट हो जाने से, इनके ख़त्म हो जाने से बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो भी एक्सटिंक्ट होती जा रही है। मतलब जंगल ही लाइफ का बहुत बड़ा सोर्स है, और अगर हमारी अर्थ से जंगल ख़त्म हो जाएगा तो इससे कहीं ना कहीं लाइफ का भी डिस्ट्रक्शन होना पक्का है। It has been well it has been well said that forests precede mankind, deserts follow. The world's ancient patronymy of tropical forests is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year, and growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizers. The World Bank estimates that a five-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with expected fuel wood demand in the year 2000. So यहाँ पे ऐसे कहा गया है कि जंगल इंसान से पहले आते हैं और रेगिस्तान उसके बाद। मतलब ये लाइन बहुत ही डीप मीनिंग वाली है। फॉरेस्ट प्रीसीड्स मैनकाइंड दैट डेजर्ट्स फॉलो। मतलब जंगल इंसान से पहले आते हैं और रेगिस्तान इंसान के बाद। मतलब यदि जंगल रहेंगे तो जीवन रहेगा, और अगर जंगलों का जीवन ख़त्म हो गया तो इंसान का भी जीवन ख़त्म हो जाएगा।
मतलब अगर जंगल नहीं रहेंगे तो इंसान की लाइफ ख़त्म हो जाएगी, और जब जंगल और इंसान दोनों नहीं रहेंगे तो लैंड रेगिस्तान बन जाएगी। सो दुनिया के जो सबसे पुराने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो भी अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। इरोडिंग का मतलब है धीरे धीरे ख़त्म होना। जैसे रेत उंगलियों से फिसलती है ना, वैसे ही हमारी ये नेचुरल जो विरासत है ये भी धीरे धीरे मिट रही है, राइट। और जो काव डंग की बात हो रही है यहाँ पर, जो एक सेकेंड, ग्रोइंग यूज़ ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव, तो जो गोबर को जलाने के कारण जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो भी अपनी जो नेचुरल खाद खाद जो मिलती थी, डंग को एज अ नेचुरल खाद यूज़ किया जाता है, अब उसको भी हम जला रहे हैं तो वो उसको मिट्टी को वो भी नहीं मिल रही है। मतलब पहले जो है मिट्टी जो थी वो डंग से फर्टाइल होती थी, लेकिन अब हम उसको भी जला रहे हैं तो उससे जो अर्थ है, उसकी जो मिट्टी है वो उसकी भी क्वालिटी घट रही है, right? The World Bank estimate that five-fold increase in the rate of forest planting. अब वर्ल्ड बैंक का ये एक अनुमान है, एस्टिमेशन है कि जो हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उसकी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट को 5 गुना ज़्यादा काटना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए सॉरी लगाना पड़ेगा, मतलब हमको फॉरेस्ट प्लांटिंग करनी पड़ेगी। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर जो मतलब ये वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेशन है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फ्यूल फूड की डिमांड को पूरा करने के लिए हमको 2000 सन में, मतलब ये उस टाइम का एस्टिमेशन है कि तब हमको कम से कम जो आज जो हम पेड़ लगा रहे हैं ना उससे कम से कम 5 गुना ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे। मतलब सिर्फ पेड़ लगाने काफ़ी नहीं है, उसको हमें तेज़ी से बड़ा भी करना पड़ेगा। अब वो कैसे हो गई तो बहुत मुश्किल है। जेम्स फेथ, the president of the World Resources Institute, said the other day, we were saying that we are losing the forest as an acre a second, but it is much closer to acre a half to a second. अब जेम्स फेथ जो कि वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि हम हर सेकंड एक एकड़ जंगल खो रहे। 1 एकड़ होता है बहुत बड़ा लैंड, तो हम हर एक सेकंड में 1 एकड़ का जो लैंड पे जो जितना भी बड़ा जंगल होता है ना वो खो रहे हैं। मतलब हर पल जंगल मिटते जा रहे हैं। ये जो एस्टिमेशन है ना, ये जो मतलब आंकड़ा है, ये बहुत डरावना है कि अभी एक सेकंड होता ही कितना है, उस 1 सेकंड में हम 1 एकड़ से भी ज़्यादा बड़ा जंगल खो रहे हैं। कहाँ फिर जाएगी अर्थ, मतलब क्या होगा अर्थ का, ये सोच के ही बहुत डर लगता है। आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 48A के अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो एनवायरनमेंट और जंगल की रक्षा के लिए और सुधार के लिए प्रयास करेगा, मतलब कोशिश करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि हम एनवायरनमेंट के लिए और जो वाइल्ड लाइफ है इसकी सेफ गार्ड के लिए हमें काम करना होगा। बट what causes endless anguish is the fact that the laws are never respected, not enforced in India. लेकिन सवाल ये है कि इन कानूनों का पालन कौन कर रहा है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है आर्टिकल 48A में कि हमको एनवायरनमेंट और मतलब एनवायरनमेंट के लिए, वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए, फॉरेस्ट की सुरक्षा के लिए हमें मेहनत करनी होगी, हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, मतलब हमें इनको प्रोटेक्ट करना होगा। लेकिन कौन इनकी इन लॉज की रिस्पेक्ट कर रहा है? ना ये तो लॉज रिस्पेक्ट हो रही है इनकी, ना ये इन्फोर्स्ड हो रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, फॉर इंस्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शेल बी अबॉलिश्ड। मतलब एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये भी लिखा है कि कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी और जो बॉन्डेड लेबर है वो अबॉलिश करना चाहिए, बट दे फ्लरिश शेमलेसली इवन 44 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ, मतलब ये तब जब 44 ईयर्स हुए थे और अब तो 70 ईयर्स से भी ज़्यादा हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए। मतलब कहने को तो कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी सारी चीज़ें लिखी हैं, बहुत सारे रूल्स लिखे हैं, बहुत सारे लॉज लिखे हैं कि हमें अपने देश में अनटचेबिलिटी नहीं करनी, कास्टिज्म नहीं करना है, बॉन्डेड लेबर नहीं करना है, लेकिन ये फ्लरिश हो रहा है शेमलेसली दिन पर दिन, इतने सालों बाद भी। ऐसे ही लिखा तो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 48A में कि हम अपने एनवायरनमेंट की सुरक्षा करनी है, वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा करनी है, जो एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं उनकी हमें प्रोटेक्शन करनी है। लेकिन
इन सब का फ़ायदा क्या है? कभी ये तो होता नहीं है, क्योंकि इंसानों में मतलब इन हम जो इंसान है हम में ये चीज़ इनबिल्ट है ही नहीं कि हम अपने एनवायरनमेंट की सुरक्षा करें, हम अपने रिसोर्सेज की सुरक्षा करें, ये चीज़ है ही नहीं। A recent report of a parliament estimate committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forests over the last 4 decades. So ये बताते हैं कि उस समय जब ये ऐसे लिखा गया था तो उस समय पार्लियामेंट की एस्टिमेट्स कमेटी थी, उसकी एक रिपोर्ट थी कि पिछले 4 डिकेड्स में भारत में जो है ना, इंडिया में जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी कम हो गए हैं। मतलब भारत में वो जो वन है, जो जंगल है वो कम होते जा रहे हैं। तो कैटेस्ट्रॉफिक डिप्लेशन का मतलब है बहुत तेज़ी से जो जंगल है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये डिज़ास्टर का बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा हिंट है ये। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा इज़ लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स अ ईयर। अब भारत में लगभग 37 लाख एकड़ जंगल हर साल खो रहे हैं। तो ये जो फैक्ट है ये हमारे देश की एनवायरनमेंट की गंभीर हालत बताता है। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली treeless. The actual loss of forest is estimated to be 8 times the rate indicated by government statistics. So बड़े बड़े एरियाज जो हैं, जो मतलब गवर्नमेंट की रिकॉर्ड में भी जिन्हें हम फॉरेस्ट लैंड कहते हैं, एक्चुअल में वो तो वहाँ पेड़ है ही नहीं। मतलब आप ये कह सकते हो कि ऐसे बहुत सारे लैंड है हमारे देश में जो ऑन पेपर्स गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वहाँ पर जंगल है, लेकिन अगर आप वहाँ पर एक्चुअल में जाओ तो वहाँ कोई जंगल है नहीं, है वहाँ पे जंगल, प्लेन लैंड है, वो बैरन लैंड है वो। मतलब कागज़ों में लैंड वन है, कागज़ों में जंगल है, लेकिन नहीं है। तो ये जितना भी हमने डेटा पढ़ा, हो सकता है इससे कहीं ज़्यादा सिचुएशन वर्स्ट हो सकता है रिकॉर्ड्स में बस चीज़ें थोड़ी ठीक करके लिख दी गई हों। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly so that it is critically in many of 88 countries investigated. अब वो कह रहे हैं कि एक यूएन ने, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने 3 साल एक स्टडी की थी और उसमें चेतावनी दी थी कि दुनिया के कई देशों में एनवायरनमेंट की स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है कि क्रिटिकल लेवल पहुंच गई है। यानी कि अब सिर्फ बात चेतावनी की नहीं है, वार्निंग की नहीं है, मतलब अब काम करने की ज़रूरत है हमें अपने एनवायरनमेंट के लिए। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future human society. देखिए मैंने भी आपको शुरू में कहा था कि सब चीज़ों का जो भी रूट कॉज है, मतलब हमारे एनवायरनमेंट को क्या क्या थ्रेट्स है, पॉल्यूशन है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत बड़ी कमी होती जा रही है, हम उसके सस्टेन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, जंगल कम होते जा रहे हैं, हम लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इन सब के पीछे जो मेन कॉज है वो ये है, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन ही रूट कॉज है। अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेना तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे पास जो एग्जिस्टिंग लैंड है प्लेन लैंड रहने के लिए उतना काफ़ी रहेगा लोगों के रहने के लिए। क्यों? क्योंकि क्या बोलते हैं, फिर और और वन नहीं, और जंगल नहीं काटने पड़ेंगे, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ेगी तो और जंगल काटने पड़ेंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन की ग्रोथ ही सबसे बड़ा रीज़न है। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि पॉपुलेशन जो बढ़ रही है इससे ह्यूमन सोसाइटी के भविष्य के बिगड़ने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है। क्योंकि पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो ही हमें रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, उसकी वजह से हमें जंगलों को काटना पड़ जाता है, उसकी वजह से पोल्यूशन होता है। मतलब सब प्रॉब्लम की जड़ जो है वो है पॉपुलेशन। इट टुक मैनकाइंड मोर देन अ बिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन। By that was the world population around the year of 1800. By the year 1900, a second billion was added, and the 20th century had added another 3.7 billion. The present world population, ये तो खैर उस ज़माने की, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो 7 बिलियन से भी ऊपर जा चुका है। Even every 4 days the world population increased by 1 billion. तो ये अब यहाँ पर इनका कंसर्न जो है पॉपुलेशन को है कि इंसान को पहली 1 बिलियन की जनसंख्या तक
पहुँचने में 10 लाख साल लगे थे। मतलब जब दुनिया शुरू हुई तब 1 बिलियन तक पहुँचने में 10 लाख साल लगे थे, पर 20th सेंचुरी में के लगभग 100 सालों में ही 4 अरब हो गए। मतलब अब जो है पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई है, पिछले 100-150 साल से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, और 1900 का जो टाइम आया इसमें तो 2 बिलियन हो गई थी, और 20th सेंचुरी में तो 3.7 बिलियन हो गई, और जब जब का ये ऐसे लिखा हो तब 5.7 बिलियन थे। और अभी अगर आप गूगल करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अब वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है। और हर 4 दिन में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 मिलियन से भी ज़्यादा, अब तो और ज़्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि ऑथर हमें बताते हैं कि धरती के और अर्थ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो है जंगल, नदियाँ, मछलियाँ, खेत, और वो सभी तेज़ी तेज़ी से नष्ट हो रहे हैं। इसका कारण है वर्ल्ड इंसान की बढ़ती हुई पॉपुलेशन और इंसान का अनकंट्रोल्ड यूजेज। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आगे पढ़ते हैं। Fertility falls, incomes rise. Fertility falls as incomes rise. Education spreads and health improves. तो जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एजुकेशन फैलती है, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होता है, और वैसे वैसे फर्टिलिटी गिरती है। अगर वो कह रहे कि अगर जैसे फर्टिलिटी गिरेगी मतलब पॉपुलेशन कम होगी तो इनकम बढ़ेगी, राइट, क्योंकि कुछ ही लोगों में फिर इनकम बढ़ेगी, एजुकेशन बढ़ेगी ताकि सबको फिर एजुकेशन मिल जाएगी, और हेल्थ इम्प्रूव होगी। दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, बट डेवलपमेंट itself may not be possible if the present increase in number continues. तो वो कह रहे हैं कि अगर जहाँ पर लोग पढ़े लिखे होंगे, मतलब नरिश्ड होंगे, वहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल की जा सकती है। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसी तरह से बढ़ती जा रही है, इससे तो कोई विकास हो ये तो इम्पॉसिबल हो गया। मतलब जब पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ना और डेवलपमेंट होना ये एक दूसरे के दुश्मन है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर मतलब अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डेवलपमेंट होना बहुत कम, उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपको डेवलपमेंट कराना है तो पॉपुलेशन को कम करना ही होगा। लेकिन अब ये ऐसा नहीं होता है, तो द रिचर गेट रिचर, द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर। अब देखो अमीर तो अमीर होते जा रहे हैं और गरीब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं और वो गरीबी में फंसे हैं। तो गरीबी का एक पूरा साइकिल है। एक्चुअली क्या होता है कि जब इंसान गरीब होता है ना तो उसके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते, उसका इतना एक्सपोजर भी नहीं होता, वो पढ़ा लिखा भी नहीं होता है। तो जब वो पढ़ा लिखा नहीं होता है तो उसके बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। जब उसके बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, वो थोड़ा भी कमाता है तो वो उन बच्चों के खाने पीने में लग जाता है, तो फिर पैसों की कमी हो जाती है और फिर और गरीबी हो जाती है। इसलिए तो कहते हैं गरीब गरीब ही रह जाता है, क्योंकि वो गरीबों की तरह रहता है, उसके ढेर सारे बच्चे होते हैं। अमीर लोग ही इवन बच्चे कम होते हैं, एक्सेप्शंस तो हमेशा हैं। ऐसा मैं ये नहीं कह रही कि सारे ही अमीर लोगों के कम बच्चे होते हैं, सारे ही गरीब लोगों के ज़्यादा बच्चे होते हैं, पर मेजॉरिटी यही है कि अमीर लोगों के बच्चे कम होते हैं तो वो और अमीर हो जाते हैं प्रोग्रेस करके, क्योंकि वहाँ खाने वाले कम होते हैं, वहाँ खर्चे कम होते हैं। मतलब खर्चे तो होते हैं, लग्जीरियस लाइफ जीने के खर्चे होते हैं, लेकिन वो फिर उस हिसाब से पैसे भी कमाते हैं। लेकिन गरीब लोग जो हैं उनका बेसिक नीड क्या है कि खाना मिल जाए, रहने को जगह मिल जाए, और मतलब हेल्थ जो है मेडिकेशन वगैरह ठीक से हो जाए। लेकिन जब बच्चे ज़्यादा होते हैं और कमाने वाला एक ही होता है तो प्रॉब्लम होती है, राइट। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, मतलब लोग ऐसा सोचते हैं कि ज़्यादा बच्चे होने का मतलब है कि ज़्यादा काम करने वाले होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, मेरली मोर पीपल विदाउट वर्क। तो जो लोग कहते हैं ना कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा काम करने वाले होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब ज़्यादा बच्चे होने का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा काम करने वाले होंगे, बल्कि इसका मतलब है कि ज़्यादा लोग बिना काम वाले होंगे, मतलब ज़्यादा बेरोज़गार होंगे। तो जो लोग कहते हैं ना कि ज़्यादा बच्चे तो ज़्यादा इनकम, ये गलत है। ज़्यादा बच्चे तो ज़्यादा लोग बिना काम के, बिना ऑक्यूपेशन के, तो गरीबी ज़्यादा। मतलब जनसंख्या बढ़ने से रोज़गार नहीं बढ़ता, बल्कि बेरोज़गारी बढ़ती है। हमारे देश में जो इतनी बेरोज़गारी है उसका सबसे बड़ा रीज़न है जनसंख्या।
अगर हमारे देश में जनसंख्या इतनी नहीं होती तो जितने भी लोग होते आज, वो लोग उनकी मतलब उनके पास जॉब होता, यानी उनके पास कोई भी काम होता ही होता। तो जितने भी देश हैं जहाँ पर पॉपुलेशन ठीक ठीक है, ना कम है ना ज़्यादा है, मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी है, वहाँ पर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छे रेट पर है। इवन वो लोग बाहर के लोगों को भी, मतलब फॉरेनर्स को भी, मतलब अपने देश से बाहर के लोगों को भी जॉब ऑफर करते हैं। It is now suggested that human beings be treated like cattle and compulsory sterilized. सो यहाँ पर ऑथर ये नहीं कह रहे हैं कि लोगों को जानवरों की तरह ज़बरदस्ती उनकी इनफर्टिलिटी करा दी जाए, मतलब उनकी नसबंदी करा दी जाए, वो ये नहीं कह रहे। वो ये कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल है ना, वो फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी खुद की इच्छा से होना चाहिए। मतलब अगर हम मान लीजिए, अगर हम अपनी फैमिली में 2 ही बच्चे चाहते हैं या एक ही बच्चा चाहते हैं, तो हमारी मर्ज़ी से होना चाहिए। ये नहीं कि आप सरकार जो है वो कोई पॉलिसी लेकर आए और लोगों को पकड़ पकड़ के उनकी कंपल्सरी स्टरलाइज करा दे उनकी फर्टिलिटी को, और कैटल्स की तरह उन्हें जैसे डॉग्स की करा देते हैं ना, नसबंदी करा देते हैं डॉग्स की, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, ताकि इनके बच्चे ज़्यादा ना हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब इंसानों को, लोगों को खुद समझना चाहिए कि उन्हें ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए। मतलब नसबंदी ऐसी जो चीज़ है वो फोर्सफुली नहीं होनी चाहिए, वो खुद की इच्छा से होनी चाहिए। But there is no alternative voluntary family planning without introducing an element of coercion, and the choice is really between control of population, perpetuation of poverty. तो मतलब ऑथर जो कह रहे हैं कि बिना किसी मजबूरी के, खुद की इच्छा से हमें फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए। मतलब खुद की इच्छा से जो फैमिली प्लानिंग होती है वही एकमात्र समाधान है। मतलब ये खुद समझना होगा कि छोटा परिवार का मतलब होता है सुखी जीवन, राइट। सो द पॉपुलेशन, और जब भी आपकी आपकी अगर छोटा परिवार, तो पॉवर्टी भी दूर हो जाएगी। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे, बट अच्छा ये तब की है, अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इससे। मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका और साउथ अमेरिका। लेकिन हाँ, ये फैक्ट आज भी है कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन भी इतनी नहीं होगी जितनी खुद अकेले इंडिया की पॉपुलेशन है। मतलब इन अफ्रीका और साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन को अगर हम मिला लें तो भी इंडिया की पॉपुलेशन जितनी नहीं हो पाएगी। नो वन फैमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया विद डाउट दैट द होप of the people would die in their hungry huntsmen unless population control is given topmost priority. तो वो कहते हैं कि जो भारत की आबादी है, मतलब भारत की जो स्थिति है, इससे परिचित कोई भी इंसान इस बात पर डाउट नहीं कर सकता कि अगर जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं किया गया तो गरीबों की जो भूखी झोपड़ियाँ आशा खो देंगी। मतलब यहाँ पर ऑथर एक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अभी हमने नियंत्रण नहीं किया तो हमारा फ्यूचर बहुत ही अंधेरे में होगा, राइट। For the first time in human history, we see transcending concern that survival not just of the people but of the planet. अब ह्यूमन हिस्ट्री पहली बार चिंता केवल लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे ग्रह के एग्जिस्टेंस की हो रही है। ट्रांसेंडिंग कंसर्न का मतलब है इंसान अब अपने से आगे वालों का सोचने लगा है। मतलब अर्थ को लेकर, अर्थ की चिंता को लेकर अब वो थोड़ा जागरूक हो गया है। द वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ अ वेरी बेसिक एग्जिस्टेंस। अब यहाँ पर हम अपने एग्जिस्टेंस, अपने अर्थ के एग्जिस्टेंस के बारे में सोच रहे हैं। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल्स आर डिमाइज, इट्स आर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। अब एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हमारे अंत का संकेत नहीं है बल्कि भविष्य की चेतावनी है। मतलब अगर हम अभी भी हम अवेयर नहीं हुए तो ये समस्या आगे चलकर मतलब और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, और हम अभी थोड़े से अवेयर हो जाएं तो ये समस्या सुलझ जाएगी। मतलब अभी भी सुधार करने का मौका है। द इमर्जिंग न्यू विजन, वर्ल्ड विजन हैज़ अशर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब दुनिया जो है अब उस एरा में आ गई है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को फील होने लगती है। मतलब अब हर इंसान, हर एक एजेंसी जो है एनवायरनमेंट की रक्षा के लिए जिम्मेदारी लेगी, और वो लेनी ही होगी। इट्स अ होलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू, seeing the world as an integrated whole rather than a disassociated collection of parts। मतलब दुनिया को अलग अलग हिस्से में नहीं बल्कि एक, मतलब दुनिया को अलग अलग हिस्सों में नहीं बल्कि एक यूनिटी बनकर, एक यूनिट बनकर
एक ही यूनिट बनकर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू है और सब कुछ हमारा एक दूसरे से जुड़ा है, इंसान, जानवर, पौधे, पानी, हवा, सब। इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस नए एरा में, नए न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंडस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब सिर्फ गवर्नमेंट या जनता नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी नेचर की तरफ अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। वाटर ट्रांसफॉर्मेशन would be affected if more businessmen start to share the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Fuller, who 5 years ago declared himself to the company's chief environmental officer. He said, "Our continued existence as a leading manufacturer require that we excel in environmental performances." मतलब ये है कि कितना बड़ा चेंज आ सकता है अगर सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो ड्यूपॉन्ट कंपनी के चेयरमैन एडगर एस वुलार्ड की तरह सोचे, जिन्होंने खुद को अपनी कंपनी का सीईओ, यानी कि सीईओ की वैसे कुछ और होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सीईओ की अलग फुल फॉर्म बताई कि वो अपनी कंपनी के चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारी जो कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस है एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर, ये पूरी दुनिया, मतलब हमको हमको इस पर समझना पड़ेगा इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस के लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन था, मतलब एक बहुत अच्छा एग्जांपल था कि बड़े इंडस्ट्रीज भी अगर नेचर को, अगर इन्वायरमेंट को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो चेंज आना पॉसिबल है। जैसे उन्होंने कहा था, आर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। तो इसका मतलब है कि उन्होंने कहा था कि अगर एक भी लीडिंग मैन्युफैक्चरर इस तरह से सोचे, मतलब अपने इंडस्ट्री के अलावा, मतलब एनवायरनमेंट के लिए भी सोचे, तो दूसरे लोग भी मतलब इससे कर लेंगे। मतलब अब जो सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आपने कितना प्रॉफिट किया, अब सक्सेस का मतलब ये है कि आपने अपने बिजनेस के साथ एनवायरनमेंट के कितना ध्यान रखा। Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous word, "No generation is a freehold on this earth." तो एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं थी, मतलब मार्गरेट थैचर, उन्होंने उनके भी सारे स्टेटमेंट्स में से एक जो सेंटेंस है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था कि कोई भी पीढ़ी, नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, मतलब कोई भी पीढ़ी इस पृथ्वी की मालिक नहीं है। और ये बहुत ही हिस्टोरिकल स्टेटमेंट है जो जिम्मेदारी की भावना को जगाता है। ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी विद अ फुल रिपेयरिंग लीज, राइट। सो ये कहते हैं कि हमारे पास हमारी जो लाइफ है वो एक टेनेंसी की तरह है। हम इस दुनिया में एज अ टेनेंट आए हैं, हम इसके मालिक नहीं हैं, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम अगर हम किसी घर में टेनेंट है तो हम उस घर में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, हम उस घर में बस रह सकते हैं। उस घर में हम अपना खाना बना सकते हैं, हम वहाँ रह सकते हैं, खुद को सर्दी, बारिश, गर्मी, इन सब से बचा सकते हैं, लेकिन उस घर में हम कोई तोड़फोड़ नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी का कुछ पेंट नहीं करा सकते, है ना, कुछ चीज़ नहीं लेकर आ सकते, कुछ नई चीज़ नहीं बनवा सकते। तो इस दुनिया में जो हम रह रहे हैं ना, हम एज अ टेनेंट रह रहे हैं, हम कुछ समय के लिए यहीं आए हैं, कुछ 30 40 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, इससे ज़्यादा के लिए हम यहाँ पे नहीं आए। हम इस दुनिया के अर्थ के टेनेंट हैं, तो हम यहाँ पर रहें, हम अपना ध्यान रखें, अपने आप को ग्रो करें, वो अच्छी बात है, लेकिन हम इसको इस यहाँ की सफाई का भी ध्यान रखें। हम इस घर से, अर्थ से कोई छेड़छाड़ ना करें, एज अ टेनेंट रहें। तो ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम इस पृथ्वी के मालिक नहीं हैं, हम तो किराएदार हैं जिन्हें इसे सुधार कर सुरक्षित बनाकर आगे की पीढ़ी को सौंपना है। In the words of Mr. Lester Brown, we have not inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children. अब मिस्टर लेस्टर ब्राउन की भी एक लाइन जो हमने पहले भी पढ़ी थी कि हमें ये अर्थ हमने अपने पूर्वजों से नहीं पाई है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। मतलब ये जो हमें अर्थ मिली है ना, ये हमें अपने पूर्वजों से नहीं मिली कि हम इसका जो मर्जी करें। जो चीज़ें हमें इनहेरिटेंस मिलती है ना, हम उसके मालिक होते हैं।
हमको हम उसे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये अर्थ हमें इनहेरिटेंस में नहीं मिली है, ये हमें हमारे बच्चों से मिली है। तो हमारी ड्यूटी है कि हम उनको इसी तरह से हेल्दी अर्थ को उनको हैंड ओवर करें। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है और यही लाइन, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आर चिल्ड्रन, यही इस पूरे चैप्टर का सार है। तो ये चैप्टर बहुत अच्छा था, एनवायरनमेंट फोकस था। हम सबको आज भी, ऐसे बहुत पुराना लिखा हुआ है लेकिन सिचुएशन आज भी वही है। हमें समझना पड़ेगा कि पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ, यही अर्थ की सबसे बड़ी बीमारी है। पॉपुलेशन कंट्रोल, तब अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। और एक जो नया एरा है, एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ हमें सबको, हर एक पर्सनल इंडिविजुअल को, सोसाइटी को, गवर्नमेंट को, इंडस्ट्री को, सभी को अर्थ की सुरक्षा की, अर्थ की अर्थ की टेक केयर की जिम्मेदारी लेनी होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम इस धरती के मालिक नहीं हैं, हम इसके ट्रस्टीज़ हैं। हम यहाँ पर एज अ टेनेंट रहते हैं, हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि एक पोएम है, चाइल्डहुड बाय मार्कस नेटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, बहुत ही थॉटफुल और इंट्रोस्पेक्टिव पीस है, जो कि क्लास 11 इंग्लिश हॉर्नबुल बुक का पार्ट है। It beautifully explores one of the most sensitive questions that every human face. When did my childhood go? When does the childhood end? So in this poem, the poet looks back at his life and tries to find out the exact moment when his innocent childhood disappeared and mature understanding of life began. He wonders whether childhood ended when he turned 11, or when he realized that heaven and hell were not real places, or when he discovered that adults do not always act as they preach. So through this reflection, the poet expresses the pain of growing up, how innocence and purity and imagination fade as knowledge and reasoning grow. Yet in the end, he realizes that through childhood is lost, it still lives on in the face of a child, in a child's smile, in a world of innocence. So Marcus Nathan's poem, The Childhood, gently reminds us that growing up is inevitable, but losing the wonder and purity of childhood is not. Right? चलिए इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। पोएम शुरू होती है क्वेश्चन से, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? तो वो कहते हैं कि पोएट पूछ रहे हैं कि मेरा बचपन कब चला गया, कब गया मेरा बचपन। तो पोएट यहाँ पर अपनी लाइफ से जुड़ा एक बहुत ही इमोशनल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उन्हें ये सोचने की क्यूरियोसिटी है कि बचपन की मासूमियत और इसकी ईजीनेस कब खो गई। वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11? तो वो पूछ रहे हैं कि मेरा बचपन क्या उस दिन खो गया था, उस दिन चला गया था जब मैं 11 साल का हुआ था। मतलब आई सीज टू बी 11 जब मैं 11 साल का नहीं रहा था, 11 साल से ज़्यादा एज हो गई थी, मतलब जब मैं 11 साल का हो गया था। तो यहाँ पर पोएट सोचते हैं कि क्या बचपन का अंत, बचपन की एंड तब हुआ जब वो 11 साल के हुए थे, यानी कि अब वो 11 ईयर्स के बाद क्या होता है, बच्चा बच्चा नहीं रहता, वो टीनेज हो जाता है ना। तो 11-12 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसे टीनेज बोलना चालू कर देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरा बचपन क्या तब चला गया था जब मैं टीनेज में आ गया था, जब मेरी चाइल्डहुड ख़त्म हो गई थी। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेवन एंड हेल कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी? तो वो कहते हैं कि मेरा बचपन क्या उस समय गया था जब मुझे एहसास हुआ था कि हेवन और हेल जो है ज्योग्राफी में तो है ही नहीं, मतलब नहीं पाई जाती। मतलब कवि जो है, पोएट जो है वो, अब देखिए हेवन और हेल क्या है, आपको पता है हेवन और हेल है कहाँ दुनिया में? नहीं पता है। सो हेवन और हेल का जोग्राफिकल कोई जोग्राफिकल क्या बोलते हैं उसको, कोई एविडेंस तो है नहीं। ये तो रिलीजियस स्टेटमेंट है, रिलीजियस थॉट्स है इसमें कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाओगे, हेवन में जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो हेल में जाओगे। तो ये बचपन की जो धार्मिक धारणाएं थी पोएट की, तो वो बचपन में लगता था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि हेवन और हेल तो कुछ है ही नहीं, तो क्या तब उनका बचपन खो गया था?
मतलब जब उन्होंने वो बड़े हुए, थोड़ा सा उन्होंने पढ़ाई की, तो किसी भी ज्योग्राफी की बुक में हेवन और हेल के बारे में बताया ही नहीं। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वाज दैट द डे। तो किसी भी ज्योग्राफी की किताब में उन्हें हेल और हेवन का डिस्क्रिप्शन नहीं मिला, मतलब उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। तो बचपन में हमें स्वर्ग और नर्क जैसी बात हमें हमें लगता था कि सच है, लेकिन जब हम साइंस पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो ऐसी कोई जगह हमको मिलती ही नहीं है। तो जब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि हेवन और हेल जैसा कुछ है नहीं, तो क्या तब उनका बचपन चला गया? वॉज दैट द डे, मतलब वो दिन था क्या जब मैं 11 साल का हो गया था, जब मुझे पता चल गया कि हेवन और हेल तो है ही नहीं, क्योंकि वो मुझे किसी जोग्राफी की किताब में मिला नहीं। तो क्या वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया? तो यहाँ पर ये फिर से ये सवाल को दोहरा रहे हैं, क्या ये वही दिन था जब उनकी मासूम मासूम इनोसेंस सोच जो है ख़त्म हुई थी, और वो तर्क देने लगे थे, तर्क मांगने लगे थे, मतलब वैलिड रीजंस पे बात करने लगे थे? तो क्या उस दिन उनका बचपन खो गया था, जब वो परी की कहानी से हटकर रीजंस पर आ गए थे, साइंस पर आ गए थे? अब दोबारा वो पूछते हैं, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मतलब मेरा बचपन आखिर गया कब? मतलब कवि जो हैं, पोएट जो हैं, वो अभी भी खोज में हैं। वो उस मोमेंट को याद करने की कोशिश कर रहे हैं जब उन्होंने बड़ा होना शुरू किया था। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, मतलब वो कह रहे हैं क्या वो समय था जब मेरा बचपन खोया, जब मैंने फील किया कि बड़े लोग वैसे नहीं होते जैसा वो दिखाते हैं, जैसे वो दिखते हैं। तो यहाँ पर पोएट को एहसास होता है कि बड़े लोग अक्सर वो कहते हैं जो करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। यानी कि दुनिया में काफ़ी झूठ है, काफ़ी दिखावा है, काफ़ी करप्शन है, काफ़ी कपट है, छल कपट है। मतलब बड़े लोग जैसे दिखते हैं ना वैसे है नहीं। तो जब उन्हें ये बात रियलाइज़ हुई थी ना, क्या उस दिन उनका बचपन खो गया था? दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच ऑफ लव बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, वॉज दैट द डे? तो बड़े लोगों के लिए कहते हैं कि बड़े लोग प्यार की बातें करते हैं, प्यार की सीख भी देते हैं, प्रीच भी करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसको ये समझ में आ जाता है कि कहना और करना एक जैसा नहीं है। राइट? मतलब वो पल है जब बचपन की मासूम जो चीज़ें होती हैं वो टूट जाती हैं। तो मतलब वो प्यार की बातें करते हैं, प्यार की सीख देते हैं, लेकिन प्यार वाले काम तो करते नहीं हैं। तो जब पोएट को ये बात समझ में आई, तो क्या उस दिन उनका बचपन खोया था? क्या वो दिन था वो? मतलब वो फिर से उस क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, क्या यहीं पर उनकी मासूमियत खो गई थी? अब नेक्स्ट स्टैंजा में फिर से ये क्वेश्चन को रिपीट करेंगे कि आखिर मेरा बचपन कब गया। तीसरी बार वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो पोएट है वो बहुत ही उलझन में है, बहुत ही बहुत ही उलझे हुए हैं वो। अब वो दोबारा कोई एक बात बताते हैं, वॉज इट वेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन। तो मतलब वो कह रहे हैं कि जब मैंने महसूस किया था कि मेरा जो मन है, मेरा जो माइंड है, वो एक्चुअली में मेरा है, तो क्या तब मेरा बचपन खोया था? मतलब यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जब उन्हें सेल्फ अवेयरनेस की फीलिंग हुई थी, एक्सपीरियंस हुआ था, तब उन्हें लगा था कि सोचने का ढंग, उनका सोचने का ढंग दूसरों से अलग है। टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, मतलब जिस जिस भी तरीके से मैं अपने काम कर सकता था, अपने प्रयोग कर सकता था, मैंने किए। यानी कि वो समझने लगे थे कि उनके डिसीजंस, उनके थॉट्स उन्हीं के हैं। तो वो मतलब दूसरों के इन्फ्लुएंस से मुक्त हो गए थे। तो क्या उस दिन उनका उनका बचपन खो गया था? प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल। तो ऐसे उनके मन में विचार आते थे, ऐसे थॉट्स आते थे जो दूसरों के नहीं होते थे, केवल उनके खुद के होते थे। मतलब जब उन्होंने इंडिपेंडेंटली सोचना शुरू कर दिया था, तो क्या तब उनका बचपन ख़त्म हो गया था और उनकी मेचोरिटी की शुरुआत हुई थी? बट माई ओन एंड माइंड अलोन वॉज दैट द डे। तो जो वो कहते हैं कि जो पूरी तरह से मेरे हैं, केवल मेरे हैं, मतलब जो सोच है मेरी, सिर्फ मेरी और सिर्फ मेरी ही है, मेरी अकेले की है वो सोच। तो जब ये मुझे रियलाइज़ हुआ था तो उस दिन मेरा बचपन खो गया था। तो मतलब यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जब मैंने खुद को काफ़ी अलग इंसान पाया, बाकी लोगों से अलग, कि मेरी जो सोच है वो बाकी लोगों से अलग है, तो शायद उसी दिन मेरा बचपन खो गया था। अब फाइनल स्टेंजा में वो फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि आखिर मेरा बचपन कहाँ गया। अब नहीं, अब क्वेश्चन बदल गया है। अब तक पूछ रहे थे व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। मतलब
मेरा बचपन कब गया, व्हेन। अब क्वेश्चन यहाँ पे बदल गया कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन जब मुझसे गया, मुझसे दूर गया, तो वो गया कहाँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन बदल गया है। पहले वो कह रहे थे कि कब गया, अब वो कह रहे हैं कि कहाँ गया। यानी कि अब कवि जो है, पोएट जो है, वो अपने चाइल्डहुड को ढूंढ रहे हैं। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। वो कहते हैं कि शायद ये जो मेरा बचपन है, मेरा चाइल्डहुड, किसी फॉरगॉटन प्लेस पर चला गया है, जो किसी छोटे से बच्चे के चेहरे में छिपा है। तो पोएट को लगता है कि उनका बचपन उनके भीतर नहीं, उनके अंदर नहीं है, बल्कि छोटे बच्चों की मुस्कान में है, उनके भोले से चेहरे में। दैट्स ऑल आई नो, बस इतना ही मुझे पता है। तो यहाँ पर पोएट एक कंक्लूजन देते हैं हमें कि बचपन कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन उसकी मासूमियत दुनिया में अभी भी है, हर बच्चे की हंसी में, हर बच्चे की सादगी में, राइट। तो ये पोयम एक सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है, राइट। यहाँ पोएट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बचपन का जो एंड है वो होता है, बचपन का एंड तब होता है जब हम तर्क देने लगते हैं, जब हम रीजंस पूछने लगते हैं, जब रीजंस जानने लगते हैं, जब हम हर हर तरह की करप्शन को पहचानने लगते हैं, जब हमें हमारी खुद की पहचान मिलती है, तब हमारा बचपन खो जाता है। तो एंड में पोएट ने भी यही कंक्लूजन निकाला कि हमारा बचपन ना खोता नहीं है, बस बदल जाता है। अब वो दूसरे बच्चों के चेहरे में, उनकी मासूम आँखों में बस गया है। तो इस पोएम के कुछ थीम्स है, जैसे कि लॉस ऑफ इनोसेंस। चाइल्डहुड रिप्रेजेंट कर रहा है इनोसेंस, प्योरिटी, फेथ, जो कि अब खो गए क्योंकि वो बड़े हो गए हैं। ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी, क्योंकि अब मेच्योर हो गया पोइट, तो अब उसने क्वेश्चंस पूछना चालू कर दिया, रीज़न जानना चालू कर दिया, वो सेल्फ अवेयर हो गए हैं। एक और थीम है यहाँ पे, रियलिटी वर्सेस आइडियलिज्म। तो पोएट को रियलाइज़ हो गया कि एडल्ट जो है ना, वो जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, वो देखने के और हैं, दिखाने के और हैं। और जब उन्होंने अपनी खुद की थॉट्स की डिस्कवरी की, तब पता चला उन्हें कि बचपन खो गया है। सो एंड में इन्होंने ये भी रियलाइज़ किया कि चाइल्डहुड नेवर डाइज, इट ओनली हाइड्स इन द स्माइल फेसेस ऑफ innocent faces, smiles of the innocent faces. So growing up is necessary, but losing innocence is not, right? तो यहीं पर ये क्लास ख़त्म होती है। इस यूनिट में, इस चैप्टर में हमने एक चैप्टर पढ़ा जो कि नेचर एनवायरनमेंट की सुरक्षा के लिए था। दूसरा हमने चाइल्डहुड पर एक पोएम पढ़ी। सबसे पहले हमने इस यूनिट में ये चैप्टर पढ़ा, द एलियन प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल by Nani Pakhiwala. This chapter is not just an essay, it's a wake-up call for humanity. Nani Pakhiwala makes us realize that Earth is like a living being, and today it is suffering because of human greed, population explosion, and deforestation and population as well. So through facts, reports, and real examples, the author reminds us that we are not the owner of this planet, but only trustees. We must protect its forest, wildlife, water, and air for the generations yet to come. And he beautifully concludes that the new age must be the era of responsibility, where every person, every government, every industry works together to heal our planet, right? So यहीं पर इस क्लास को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहिए। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू टू आस्क योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच।